the person has not been allotted, or he wants to buy more shares, उसको लग रहा है कि the share market is good, ये कंपनी अच्छी चल रही है, तो वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में जाकर he can buy or sell out. Then it also provides liquidity and marketability to existing security. Marketability मतलब जहां आप आसानी से खरीद बेच सकते हो, and you are able to get hot cash for your. It also contributes to economic growth by channelizing the fund towards the most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment. और market जो है that develops on different factors, but अगर a company जो है, if it is doing good, if the government policies are supporting, so that would help in the growth of the company. Growth के साथ में आपका economic growth is also there. Securities are traded, cleared and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. ये आपका जो है सेबी वाला जो है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि मतलब कि वो कितने दिन के अंदर करना होता है. सो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? एज आई सेड, मैंने आपको मतलब कि वो द स्टोरी विच आई वाज टेलिंग, इफ यू have time and if you have interest, definitely do watch that movie. You will find कि पहले क्या होता था स्टॉक एक्सचेंज का मतलब, द पीपल हु यूज टू जस्ट सेल आउट. अब मेरी कंपनी है, मुझे बेचना है, तो आई बी अपॉइंटिंग वन ब्रोकर. वो ब्रोकर जो है ही मे यूज एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, वो माल प्रैक्टिसेस भी यूज कर सकता है, और मेरा जो मतलब कि शेयर्स है उसकी जो है कीमत ज्यादा कर सकता है. सो दैट इज वाई टू provide a platform, the stock exchange was established. A proper controlling system. As a market, stock exchange facilitates the exchange of securities into money and vice versa. Stock exchanges help companies raise capital finance, provide liquidity, safety of investment to the investors, and enhance the credit worthiness of individual companies. क्योंकि they are the one जो कि आपकी कंपनी को वैल्यूएशन करते हैं, they are the one who are also there to regulate. According to Securities Contract Act, it is a body of individuals, whether incorporated or corporated, which has been constituted with the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying or selling or dealing in securities. इसको इसीलिए सेटअप किया गया था. As I said that it is one of the most important aspect. आपका जो securities है, सेबी है, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक बहुत important है. और पहले it was not there, जिसकी वजह से लोगों को जरूर problems होती थी. The people used to have the problems. There were many people who had lost lakhs of rupees in shares, because that was more onto speculation, more onto gambling, more onto just investing. बट अब ऐसा नहीं है. डेफिनेटली रिस्क फैक्टर तो आपका रहेगा ही रहेगा. अब कंपनी कैसे काम करती है कोई नहीं जानता है, और अच्छी से अच्छी कंपनी भी एक टाइम पर लॉस लाख लेकर आ सकती है. दैट इज नॉट अ बिग वो, लेकिन इट शुड नॉट बी कंप्लीटली फ्रॉड. और इसीलिए एक प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको किया गया है. नाउ इफ यू सी, प्राइमरी मार्केट्स आपके कहीं नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग जो है, सॉरी, अगर मनी मार्केट कहीं नहीं होते, लेकिन जो आपके कैपिटल मार्केट है इनका एक प्रॉपर जोग्राफिकल लोकेशन इज देयर. जैसे आपका डीएससी, बीएससी, एनएससी. The efficient functioning of a stock exchange creates a conducive climate for an active and growing primary markets for new issues. An active and healthy secondary market in existing securities leads to a positive environment among investors. ये दो चीजें आपको मैंने अभी जो बताया कि एक टाइम ऐसा भी था, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होते हैं. नो, माल प्रैक्टिसेस विल ऑलवेज बी देयर. बिजनेस का एक सेकंड ओपिनियन होता है. बिजनेस मीन्स ओनली वन थिंग, बिजनेस का एक ही गॉड है और वो है मनी. बट डेफिनेटली जो आपके पहले प्रैक्टिसेस होते थे, दे हैव बीन रिड्यूस्ड.
with the introduction of schemes like DMAT. तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड्स liquidity and marketability to existing securities. मीन्स जहां हम अपने को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. एंड इट इज वन विच गिव्स अ कॉन्टिन्यूटी टू द. अब ये नहीं कि बेच दिया और वो पड़ा हुआ है. इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन बॉट बाय सम अदर इन्वेस्टर. मैंने सेल किया तो जिसने खरीदा होगा द इन्वेस्टर माइट बी wanting to invest. So it helps in the continuity. Pricing. Now pricing is a great factor. But अगर हम लोग actuarial science बोलते हैं, then there are certain mechanism जो लोग बाद में stock exchange पढ़ते हैं. Stock exchange के अपने बहुत सारे जो है they have their short term courses. अगर आप चाहो तो National Stock Exchange या BSE में मतलब NSE जो है they are conducting regular workshops, regular stock exchange programs also. मतलब देर आर सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑल्सो. देर आर पीपल जो कि ब्रोकर्स बनते हैं वो लोग इसमें यूज करते हैं. एंड ऑल इवन CAs वगैरह सब यूज करते हैं बिकॉज दे ऑल हैव टू कॉन्स्टेंटली वैल्यू. तो यहाँ पर जो है हाउ इट वैल्यूज, कैसे वैल्यू किया जाएगा. मेरी कंपनी अच्छी है या फिर पड़ोसी की कंपनी अच्छी, कैसे पता लगेगा. जिस कंपनी के शेयर्स आज ज्यादा डिमांड में है वो कंपनी, तो वो वैल्यू लिया जाता कि कोई मतलब कि किस कंपनी के, तो कॉन्टिन्यूसली दे विल बी सीइंग कि इस कंपनी के कितने शेयर्स को खरीदा गया, कितने को बेचा गया. And through the demand and supply theory that you use in economics, they try to मतलब कि जो प्राइस होती है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है. आपने देखा होगा आज एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए कल 90 होती है. दिस इज हाउ द प्राइजेस देयर. अगर खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो कम हो जाता है. सेबी के प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क में काम करता है. सो देयर इज अ सेफ्टी ऑफ transactions, which I said earlier this was not there. But with a proper setup of a stock exchange, this has been, we are able to deal in a fair one. क्योंकि there is no direct dealing, आपका चैनलाइज होता रहता है. जो बेचता है तो दूसरा खरीदता है, फिर बेचता है तो खरीदता है. तो that helps in the channelizing, continuation, capital formation and economic growth. If you look into 1970s and 2000, then 2020, मतलब अगर आप 30 and 20 50 years का अगर हम एक वो लेकर चलते हैं, ग्राफ लेकर चलते हैं, तो द नंबर ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड, जो कि पहले इन्वेस्ट करते थे उसमें और आज के इन्वेस्टर्स में, यू विल बी फाइंडिंग मतलब कि ड्रास्टिक डिफरेंस. यू विल फाइंड ड्रास्टिक डिफरेंस. And this is because now we know, चाहे छोटा भी हो, we are able to invest. Spreading of equity cut. It ensures wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, taking effective steps in educating the public about investment. So पैसे का जो मतलब कि इक्वालिटी है, मतलब इट शुड नॉट बी ओनली द benefits to the business but also to the investors, to the new investors. और नया कोई अगर कंपनी आ रहा है उनको भी फायदा होना चाहिए. प्रोवाइडिंग स्पेकुलेशन. देखिए स्टॉक ब्रोकर्स आपको बताते हैं दिस पर्टिकुलर जो आपका शेयर है, दिस विल गो टू दिस एक्सटेंट. सर्टेन डिग्री स्पेकुलेशन इज गुड. पहले क्या होता था, there was an unhealthy practice of speculation because अनहेल्दी तरीके से उस पर्टिकुलर शेयर को बढ़ा दिया जाता था. इफ यू हैव वॉच द स्कैम 92, यू विल सी इन दैट. अगर आप में से किसी बच्चे ने स्कैम 92 देखा है तो यू विल बी सीइंग कि एक पर्टिकुलर कंपनी का, आई थिंक ACC सीमेंट का था, दैट वाज, उसका जो शेयर थे वो एकदम से उछाले थे. सो दैट स्पेकुलेशन शुड नॉट बी देयर. That the speculation is good,
but it can be done when there is a proper insurity, there is a proper law. So it has also that. ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, this is the one which comes in 5 or 6 marker question. That is trading procedure in the stock exchange. इसके आपके डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों आ जाते हैं. You may be having a direct question or you may be having have an indirect question. Now what is the meaning of that? See, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो जाता है जहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन, मतलब द फर्स्ट 5 स्टेप्स इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज. या फिर एक क्वेश्चन आया था कि क्या नाम था, ही इज मतलब कि ही इज अ वेटर. उसका जो मतलब कि ही टोल्ड अस, उसने अपने मालिक को जो है बताया दैट ही हैड सम मनी एंड ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स. तो जो मालिक था, ही टोल्ड हिम द स्टेप्स हाउ टू मतलब कि प्रोसीड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो एक्सप्लेन, या फिर उसमें आपको पहले 2 स्टेप्स दे दिए एंड देन यू हैव टू राइट द नेक्स्ट 4 स्टेप्स. याद रखना, ये आपका जो है बिल्कुल सीक्वेंस में जाएगा. क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंड थिंग, इट विल गो ओनली इन सीक्वेंस. आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं एंड यू कैन नॉट ब्लेम योर टीचर्स लेटर ऑन. इट विल बी गोइंग ओनली इन वन. So please, when you are learning, at that time kindly learn it with, first is you have to select a broker. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, for the EIPOs, if you look into your Google, you'll find, and you should go for a broker, क्योंकि सबका एक brokerage charge होता है. Nobody will be doing anything free, so they have certain charges. तो सबसे पहले you have to approach a registered broker. Nowadays you can do it even through the internet also, and most of the banks are also now acting as a broker or sub broker. The investor has to sign a broker client agreement under registration form. पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, फिर डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है. Now what are the things that you please learn? PAN number, that's very important. Date of birth and address. Your qualifications and occupation, that is only mandatory. Sorry, that is not mandatory. Residential status, bank account, depository accounts हम खोलते हैं. Name of any other broker अगर हमने किया हुआ है तो, and client code number in the registration form. The broker then opens a trading account. वो हमारे लिए account खोल देता है. Now we now have to, second step है हमारा, हमें एक डीमेटीरियलाइजेशन अकाउंट, डीमैट मतलब डीमेटीरियलाइजेशन अकाउंट खोलना पड़ता है विद एनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. मतलब जो स्टॉक के लेना और देने में जो मतलब कि काम करते. Carvies, then there are many blue chip investors, then there is banks are there. Now what is DMAT? DMAT is an electronic account. पहले हमारे जो शेयर्स होते थे, दे यूज टू बी इन द पेपर फॉर्म, जिसकी वजह से वो खोने के या फिर चोरी होने के, मिसप्लेस होने के बहुत चांसेस होते थे. बट नाउ वी आर कीपिंग आवर शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इन द डीमैट अकाउंट. He must also have a bank account for cash transactions, क्योंकि वो जब मैं खरीदूंगी तो मैं कैसे उनको दूंगी. We don't now have this. This is what DMAT account is there. As I said, the dematerialization, यानी कि now we have only the electronic form. अब जो है physical forms नहीं होते हैं और हम अपने जितने shares रखते हैं, everything is in the electronic form. And that is why we have to open a DMAT or dematerialization with any organization. Initial
public offers are issued in DMAT forms, and more than 99% of the turnover is settled by delivery in DMAT form. The SEBI has made it mandatory for the settlement procedures to take in place in DMAT form. But why it has been done? As I said, पहले चोरी, forged transfers, झूठे सर्टिफिकेट जैसे बन जाते हैं, डिले इन ट्रांसफर्स, पेपर वर्क रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफर, इन सबको हटाने के लिए डीमैट अकाउंट एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाज फॉर्म्ड. होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट इज वेरी कन्वीनियंट, यस, क्योंकि वो तो एक मतलब कि इट्स जस्ट लाइक अ कैश. आज मेरे पास शेयर्स है, मैंने बेच दिया, तो इट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन अदर पर्सन्स, और मेरे पास मेरा पैसा रिफ्लेक्ट करेगा. एंड जिस बैंक से मेरा पैसा रिलेटेड है उस बैंक में पैसा चला जाएगा. एंड देन इफ आई वांट लोन अगेंस्ट माय शेयर्स, मैं उसी डीमैट अकाउंट के अगेंस्ट जो है आई कैन टेक, एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस of the investors are settled with greater speed, efficiency, and use of all securities are entered in an electronic book entry mode. So there is no way of any kind of malpractices or theft. अब हमने कहा था, मैं आपको बार बार कह रही थी कि there are depository participants. तो who are the depository participants? कहाँ पर, मतलब कौन है जो मेरे शेयर्स को खरीदेगा बेचेगा, कहाँ रखूंगी मैं अपने शेयर्स को? We have NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जैसे IDBI, UTI, NSE के थ्रू करते हैं. सेंट्रल डिपॉजिटर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक ऑफ इंडिया, दोनों को हम लोग जो है डीपीज या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं. ये हमारे डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स जो हैं उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं और हमें इंटीमेट करते हैं. राइट? With this, I'll be giving the stop for today. Then we'll continue, and if possible,